morning, class 9 students. This is Naren Sharma, your English teacher. Today I am going to take the remaining part of the fourth chapter of your textbook, EL. Okay, the chapter's title is A Truly Beautiful Mind. As I told you in my previous lecture, this chapter is related to one of the greatest scientists of the world, Albert Einstein. Okay, Albert Einstein, as I told you, was a great scientist who propounded the theory of relativity, that is, E is equal to mc square, where E stands for energy, M stands for mass, and C for the speed of the light in a vacuum, that is 3 lakhs kilometers per second. Okay, yesterday in my previous lecture number 2, I was on point number 9. So let me revise point number 9, then we'll continue with the remaining part of the chapter. Okay. One of the famous papers of 1905, I am here on page number 48, point number 9. One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity. Okay, so one of the well-known or popular papers published by Einstein in the Science Journal was related to special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. Absolute means not in relation to do anything else. So according to theory of relativity, time and distance are not in relation to anything else. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey. If one of them has been moving very fast relative to the other, according to the theory of relativity, here Einstein was explained by quoting the example of two perfectly accurate clocks. These clocks will not continue to show the same time, right? If they come together again after a journey. Okay. Now, one of them has been moving very fast relative to the other. There might be some difference in the working of these two clocks. One might be moving faster in comparison to the other. From this followed the world's most famous formula, which describes the relationship between mass and energy. Now, by giving the example of clock, here comes the world's most famous formula propounded by Albert Einstein, which describes the relationship between mass and energy. Okay. So E is equal to mc square. In this mathematical equation, E stands for energy, M for mass, and C for the speed of light in a vacuum, that is about 3 lakhs kilometers per second. Okay. So this is the equation of theory of relativity. E is equal to mc square. Now here Albert Einstein just quoted one very interesting thing. If you are having happy time, then how the time passes, you won't be able to know. And if you are having time full of sorrowness or sadness, then what will happen?
a little bit of time will appear to be quite long and lengthy. Here, one example is being quoted by Einstein. When you sit with a nice girl for 2 hours, when you are having a happy time in the company of a nice girl, you are sitting with her for complete 2 hours. It seems like 2 minutes. 2 hours will be passed in such a manner that you will feel that only 2 minutes have gone. But in reality, you are sitting with her since the last 2 hours. Okay. Now, when you sit on a hot stove for 2 minutes, sitting on a hot stove means having a bad or unfavorable time for 2 minutes. These 2 minutes will pass like 2 hours, and according to Einstein, that's the relativity. ये हिंदी में कहा जाता है सापेक्षवाद का सिद्धांत। एक चीज को दूसरे की सापेक्षता के आधार पर जज किया जाता है। Up to this, I completed in my second lecture. Now let us take third lecture. While Einstein was solving the most problems in physics, his private life was unraveling. Unraveling means starting to fall. जब एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है फिजिक्स की सबसे अधिक मुश्किल समस्या को हल कर रहा था, तो उसकी जो उनका जो व्यक्तिगत जीवन था वो एक प्रकार से असफल होना प्रारंभ हो गया। एल्बर्ट had wanted to marry Mileva right after finishing his studies. एल्बर्ट चाहता था कि वो मिलेवा से शादी करे अपना अध्ययन का काम समाप्त करने के बाद, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट। लेकिन उसकी माँ, एल्बर्ट की माँ जो है वो इस बात के खिलाफ थी। वास्तव में शादी के लिए वो खिलाफ थी। शी थॉट मिलेवा was 3 years older than her son. उसने सोचा, आइंस्टीन की माँ ने सोचा कि मिलेवा जो कि उम्र में आइंस्टीन से 3 साल बड़ी थी, was too old for him, कि वो लड़की मिलेवा जो है वो आइंस्टीन के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी रहेगी। जनरली हम जो सुटेबल मैच देखते हैं उसमें लड़का बड़ा होता है, लड़की छोटी होती है, 2-4 साल 5 साल का गेम दोनों में होता है। She was also bothered by Mileva's intelligence. She here stands for Einstein's mother. Einstein's mother was very much worried about the intelligence that Mileva possessed. She is a book like you. She was an intelligent girl. She always remained busy in reading different kind of books. Okay, she was a treasure of knowledge. His mother said, Einstein put the wedding off. माँ ने कहा क्योंकि तुम्हारी समान जो है वो किताब के समान है या किताबों को पढ़ने में ज़्यादा रुचि रखती है। माँ की बात सुनकर आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ। उस समय आइंस्टाइन ने उसकी शादी को स्थगित कर दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। इस जोड़े ने अंत में जनवरी 1930 में शादी कर ली, यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन और मिलेवा मैरिड। ओके, बट a few years later the marriage flattered. Flattered means became weak, कमजोर पड़ जाना। लेकिन शादी के थोड़े ही साल बाद इनकी जो शादी थी, शादी का जो संबंध था वो कमजोर पड़ने लगा। मिलेवा meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. इस बीच में जो है मिलेवा अपनी
जो अतिरिक्त प्रतिभा के आधार पर उसमें जो महत्वाकांक्षा थी वो प्राप्त करने से चूक रही थी और वो एक दुखी गृहिणी के रूप में, एक दुखी पत्नी के रूप में रहने लगी। आफ्टर, क्योंकि अपनी इंटेलेक्चुअल एम्बिशन ऑफ बिकमिंग ए ग्रेट साइंटिस्ट, राइट, she was unable to get it. So she was intelligent, intellectual. She was having ambition to become more popular, more famous by inventing something new. But she remained simply an unhappy housewife. After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. तो कई सालों तक लगातार एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने के बाद इस जोड़े ने अंत में 1919 में तलाक ले लिया। डाइवोर्स यानी तलाक। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर। उसी साल 1919 में आइंस्टीन ने उसके रिश्ते की बहन एल्सा से विवाह कर लिया। ओके, आइंस्टीन न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame. आइंस्टीन के जीवन का व्यक्तिगत पाठ इसी घटनावश विभिन्न प्रकार के आविष्कार करने की जो घटना घटित हुई, तो उससे आइंस्टीन की जो लोकप्रियता थी वो विश्व प्रसिद्ध हो गई। ओके, इन 1915 he had published his journal theory of relativity. 1915 में आइंस्टीन ने उसकी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, सापेक्षवाद का जो सिद्धांत था वो प्रकाशित करवाया, which provided a new interpretation of gravity. और सापेक्षवाद के सिद्धांत ने एक नई अवधारणा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में प्रतिपादित की। An eclipse of the sun in 1919 brought proof, okay, that it was accurate. तो जब 1919 में सूर्य ग्रहण हुआ तो इस सूर्य ग्रहण ने एक सबूत के रूप में इस बात को साबित कर दिया कि जो आइंस्टाइन के द्वारा कहा गया था, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल सही था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर जो एक नई इंटरप्रिटेशन ग्रेविटी का, एक नई व्याख्या पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण शक्ति की आइंस्टाइन के द्वारा की गई थी, तो 1919 में होने वाले सूर्य ग्रहण ने इस बात को बिल्कुल सही साबित कर दिया। आइंस्टाइन had correctly calculated in advance the extent to which the light from the big star would be deflected through the sun's gravitational field. आइंस्टाइन ने बिल्कुल ठीक प्रकार से पहले से ही गणना कर ली थी उस स्तर की कि प्रकाश किसी निश्चित तारे से किस प्रकार से परावर्तित होगा या अपनी दिशा को बदलेगा। रिफ्लेक्टेड मीन्स चेंज डायरेक्शन बिकॉज इट हिट समथिंग। दिशा परिवर्तन होना किसी चीज से प्रकाश की किरण को टकराने के बाद। तो यहाँ आइंस्टीन के द्वारा बिल्कुल ठीक प्रकार से इस बात की अग्रिम रूप से गणना की गई कि प्रकाश जो है किस स्तर तक, किस मात्रा तक, जो कि निश्चित तारे से आ रहा है, वो अपनी दिशा को परिवर्तित करेगा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में से गुजरने के कारण। The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. समाचार पत्रों ने उसके कार्य को देखते हुए घोषणा की
कि ये एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में उसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत जो था सापेक्षवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इट वाज अ सॉर्ट ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में समाचार पत्र के द्वारा इस समाचार को इस बात की घोषणा करते हुए प्रकाशित किया गया। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। आइंस्टाइन ने फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 1921 में प्राप्त किया। He was showered with honors and invitation from all over the world and lauded by the press. आइंस्टाइन ने 1921 में भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया और विभिन्न प्रकार के सम्मान की बौछार उस पर होने लगी। विभिन्न प्रकार के सम्मान आइंस्टाइन को दिए गए और तमाम दुनिया के देशों से उसे आमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ एंड लॉडेड बाय द प्रेस, और उसके आविष्कारों की प्रशंसा समाचार पत्रों द्वारा की गई। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein immigrated to the United States. जब नाजी लोग जर्मनी में सत्ता में आए 1933 में, तो आइंस्टाइन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका चले गए रहने के लिए। 5 years immigrated means moved from one country to another. So here Einstein moved from Germany to United States. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. इस घटना के 5 साल बाद जब न्यूक्लियर फिशन आणविक विखंडन का आविष्कार हुआ बर्लिन में, तो जो अमेरिका के भौतिक शास्त्री थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गए। In an uproar means very upset. Many of them had fled from fascism, just as Einstein had. तो बहुत से वैज्ञानिक उनमें वो थे जो फांसीवादी ताकतों से अपनी जान बचाकर भागकर अमेरिका पहुंचे थे, इस प्रकार से आइंस्टीन पहुंचा था। Now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. और अब ये जो लोग थे जो जर्मनी से भागकर अमेरिका आए थे, तो वो इस बात को लेकर भयभीत थे कि जो नाजी लोग हैं जर्मनी के, वो शीघ्र ही एक एटम बम या अणु बम बना लेंगे। At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939, in which he warned. Urging means an humble request, vinamra prarthana. Okay, urging means companion, साथी. Urging means companion, साथी. Urging means humble request. तो अपने साथियों की विनम्र प्रार्थना के बाद आइंस्टीन wrote a letter to the American President. आइंस्टीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उस समय के राष्ट्रपति थे अमेरिका के, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को पत्र लिखा गया 2 अगस्त 1939 के दिन आइंस्टीन के द्वारा, इन विच ही वार्न, और इस लेटर में आइंस्टीन द्वारा चेतावनी दी गई अमेरिकी तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को
A single bomb of this type, a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. एक इस प्रकार का केवल एक मात्र बम जिसका विस्फोट किसी समुद्री बंदरगाह पर किया गया हो तो वो पूरे बंदरगाह को नष्ट कर देगा और साथ ही जो आसपास के क्षेत्र हैं उनको भी वो तबाह कर देगा. His words did not fail to have an effect. उसके द्वारा लिखे गए जो पत्र में जो शब्द थे तो ये अपना प्रभाव दिखाने में असफल नहीं थे. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own. अमेरिका के लोगों ने विकसित किया एक अणुबम, परमाणु बम, राइट, अपनी एक गुप्त योजना के अंतर्गत, राइट, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945. और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के द्वारा जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अगस्त 1945 में ये परमाणु बम गिरा दिया गया. आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन. इस परमाणु बम के द्वारा उत्पन्न विनाश से अत्यधिक गहराई पूर्वक व्याकुल हो गए. इनका अत्यधिक गहराई से हृदय जो है एकदम उदास सा हो गया. जितना विनाश इस परमाणु बम ने किया था जापान में. दिस टाइम he wrote a public missive to the United Nations. Missive means letter especially long and official. इस बार उन्होंने एक लंबा और आधिकारिक पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ को लिखा. In it he proposed the formation of a world government. इस पत्र में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि एक विश्व सरकार का निर्माण किया जाए. Unlike the letter to Roosevelt, this one had no impact. तो जिस प्रकार से रूजवेल्ट को पत्र लिखने का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था, तो ये पत्र जो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ को लिखा इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा. इम्पैक्ट मीन्स इफेक्ट, इम्पैक्ट मीन्स इफेक्ट यानी प्रभाव. बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट ओवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स. लेकिन अगले एक दशाब्दी तक आइंस्टाइन जो है और ज़्यादा राजनीति में रुचि करने लगा. एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द बॉम्ब बिल्डर. उसने एक आंदोलन प्रारंभ किया. एजिटेटिंग मीन्स टू स्टार्ट ए मूवमेंट कि ये जो शस्त्रों की जो दौड़ है शस्त्र निर्माण की इसको समाप्त किया जाए. एंड यूजिंग इज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी. और उन्होंने अपनी लोकप्रियता का उपयोग एक अभियान चलाने के लिए किया, विश्व शांति और विश्व में प्रजातंत्र बना रहे इस प्रयास के लिए. When Einstein died in 1955 at the age of 76, जब आइंस्टीन का देहांत हुआ 1955 में 76 साल की उम्र में, तो he was celebrated as a visionary. Visionary means a person who can think about the future in an original and intelligent way, यानी कि भविष्यवक्ता. तो उसे जो है एक महान भविष्यवक्ता के रूप में प्रतिपादित किया गया. एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज साइंटिफिक जीनियस. और उसे विश्व नागरिक का सम्मान दिया गया उन्हें. और एक वैज्ञानिक प्रतिभा, महान वैज्ञानिक के रूप में, बुद्धिमान वैज्ञानिक के रूप में उनको पूरे विश्व में जाना गया और आज भी जाना जाता है. So this is all about this chapter. I will send you question answers in PDF. Thank you all.